Recording should have begun. So today's objective will be to understand about objects, right? So within objects, there are two things we will be understanding. So it will be broken down into today and tomorrow. आज हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या है और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स क्या है ये हम सीखेंगे, right? So what are the standard objects? We will be working with those. What are fields? We will be working with those. And tomorrow's objective will be doing the same thing, but when we create an object from scratch, which is a custom object. Okay. Now, अब तक हमने जो cover किया था till yesterday, what we had covered, based on that, we already know the database in Salesforce is created using the objects, right? So for that, Salesforce provides us a few out of the box objects, right? Those are the ones which are called the standard objects. Anyone has any doubts regarding the part we have covered till now? Nothing. No one? Great. Now, तो आज के लिए जब हम कवर करेंगे, लेट्स टेक वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ वी गो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट आउट देयर, व्हिच इज कॉल्ड द अकाउंट. Okay, so we will begin with account, and then going forward we will do all the changes for the standard object within the account. I see people are still joining. Okay, right. Now, जो हमने आज तक पढ़ा था उसके बेसिस पे when I go to any object, there are few things which we notice directly, which is this page, which is the detail of the account, right? Now with detail, यहाँ पे क्या है? For standard objects, most of these fields will be read only, blank. You can't modify these. Okay, these are out of the box जो हमारे पास है. Now the first thing you have to know is when you are referring objects, you will use what is called the label, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, which is account. But every object will also, and not just object, every field, every flow, most of the configurations within Salesforce, there is something which is called a label, and there is another thing which is called the API name, or in some cases usko developer name bolte hain, right? So if you see here for this object, it is mentioned here, which is account. Let me open some other object and you will see. For every object you will see कि हमारे पास एक label है और एक API name है. Now this API name for standard objects is mostly same. Why I say mostly same? क्योंकि जो single word वाले जो हैं उनके लिए आप देखेंगे API name is same as whatever is there. API name you can see even for standard objects is a bit different from the label. Why? Because API name के अंदर हम कहीं पे spaces नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कोड में यूज होता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है, तो इसलिए API name does not have spaces. ये आपको तब भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? तो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये API नेम आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. व्हाट वुड मीन? माय लेबल कैन बी से एम्प्लॉय एंड माय API नेम कैन बी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट. हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. दिस हैज टू बी डिफरेंट. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज इट विल नॉट हैव स्पेसेस इन द API नेम. अब स्टैंडर्ड और कस्टम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जस्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, वो भी हम बाद में देखेंगे व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग द कस्टम ऑब्जेक्ट. बट फॉर नाउ दिस इज द डिटेल पेज जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं. इसके जस्ट डिटेल्स. अब जब भी आप कोई डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप टेबल बना रहे हैं, तो एज लास्ट डिस्कशन पीपल सजेस्टेड, राइट, कि जैसे एम्प्लॉय में जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल डेटा रहेगा अंदर. जैसे एम्प्लॉय का नंबर रहेगा, एम्प्लॉय का नेम रहेगा, राइट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट रहेगा. सो व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स? All those things are fields or relationships based on the type. For every object out there, ये fields और relation हमारे पास रहेगा. अब कुछ जो out of the box objects हैं उनके लिए obviously there will be a lot of fields which are created. So existing field जब आप देख रहे हैं, you just have to go to that field and you can see what is the type of this. Let's see कि
अकाउंट साइट पे जाते हैं, जस्ट एक डिफॉल्ट फील्ड है हमारा, राइट। तो इसके लिए यू कैन सी एक लेबल है, इसके लिए भी एक एपीआई नेम है, एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रोवाइड द डेटा टाइप। ओके, तो दिस डेटा टाइप से हम सेट कर सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर कौन सा टाइप की वैल्यू हम सेव करेंगे। ओके, नाउ दैट मीन्स बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कॉन्फ़िगर किस टाइप का डेटा हमको चाहिए। नाउ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, लेट्स क्रिएट अ न्यू फील्ड। ओके, तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर हमको एक नया फील्ड बनाना है। लेट्स से हमारा ये जो अकाउंट है, कैन एनीवन सजेस्ट एनी काइंड ऑफ फील्ड नेम जो हमारा अकाउंट पे जरूरत हो सकती है? एनीवन? Insurance. Account number. सॉरी, account number. Okay, account number is an existing field. Okay, can you suggest anything else? Think of this कि एक account is a customer, तो आप कस्टमर को सोच के कोई एक फील्ड बताइए क्या हो सकता है? फोन नंबर और ईमेल। Account type. Account type. Okay, 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 fine. So let's take कि अगर हमारा भी कस्टमर है तो मेरे पास मल्टीपल टाइप के कस्टमर हो सकते हैं, राइट, विच इज अ वैलिड सिनेरियो, दैट इज पॉसिबल। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या मेरे पास ऑलरेडी ऑलवेज ऑलवेज व्हेन यू आर वर्किंग विद स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स द अप्रोच शुड बी यू गो थ्रू द एग्जिस्टिंग फील्ड्स जो अभी अवेलेबल है, राइट। कैन यू रीयूज वन ऑफ दीज फील्ड्स? ओके, देन okay, in accounts case there is one field जो हम टाइप को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, we can use it, but for our examples case let's say कि account is a customer, then हमको चाहिए customer type का एक field बनाना है। now where to create those fields you will see, and Salesforce का UI का मैं आपको बता रहा हूँ, right, it is very intuitive। मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी लॉजिक जो आप सोचेंगे आपको डायरेक्टली टूल्स दिख जाएंगे स्क्रीन पे जहां से आप उनको यूज कर सके, राइट। लाइक जब भी आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, राइट, यू विल सी ओके न्यू इज डायरेक्टली है। फील्ड्स के पेज पे आप न्यू जाएंगे तो आपको नया फील्ड बनाने, ऑब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे क्रिएट दिख जाएगा, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी यू विल सी इज वेरी इजी टू यूज, डायरेक्टली विजिबल आपको मिलेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अब फील्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो टू न्यू, एंड नाउ दिस इज समथिंग you all should be very familiar with, बिकॉज आप कहीं पे भी सेल्सफोर्स में काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका डेटा इन सम फॉर्म ऑफ द अदर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के फील्ड पे ही स्टोर होगा। दैट मीन्स एज एन एनालिटिकल अप्रोच आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या क्या टाइप का फील्ड्स है, क्या क्या टाइप का फील्ड्स आप यूज कर सकते हैं इन सेल्सफोर्स, राइट। सम ऑफ दीज आर प्रीटी कॉमन, रेगुलरली यूज होते हैं, सम ऑफ दीज आर नॉट सो कॉमन, कभी कभार यूज होते हैं, राइट। So I'll walk through each of these field types and then we'll go through कि हमको क्या चाहिए, we will identify हमारी requirement क्या है, हमको उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए। Hold on, so someone joined, fine। So जब भी आप field select कर रहे हैं you have to select a type of the field कि कौन से type का field चाहिए। Now let's see what is the first type which is available to us, जो है हमारा auto number, right। Now what do I mean by auto number? ऑटो नंबर आपका क्या करता है, आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बताना पड़ेगा, राइट, एंड देन उसके बेसिस पे वो कंटिन्यूअसली नंबर को बढ़ाता रहता है, राइट। लेट्स से अगर पहला रिकॉर्ड बनेगा तो इट विल बी 1, दूसरा रिकॉर्ड इट विल बी 2, तीसरा रिकॉर्ड इट विल बी 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे नंबर इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ फील्ड इज कॉल्ड ऑटो नंबर, विच इज अ गुड फील्ड जब आपको कोई यूनिक वैल्यूज वगैरह रखनी। There is the next type of field which is called a formula field। फॉर्मूला फील्ड आपका क्या करता है, समटाइम्स आपको डेटा एंटर नहीं करना है, मे बी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। लेट्स से मेरा जो कस्टमर है, तो कस्टमर मेरा किसी एक तारीख को ज्वाइन किया है, तो मैं देखूंगा कि कौन सी तारीख को अकाउंट क्रिएट हुआ है, एंड देन आई हैव टू से समवन कि ये कितने दिन से मेरा कस्टमर है,
राइट, दैट इज अ सिनेरियो पीपल यूज कि चलो किसी का 5 साल हो गया तो उसको कुछ रिवॉर्ड देंगे, हम कुछ गिफ्ट देंगे. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन अ बिजनेस, यस और नो, राइट. Yeah. तो अब वैसे सिनेरियो में हमारे पास जो सिचुएशन आ रहा है कि हमको एक फील्ड चाहिए, लेकिन इट शुड बी सम काइंड ऑफ फॉर्मूल, राइट, कि वो एक इक्वेशन देंगे, वो सेटिस्फाई हुआ तो वो वाला वैल्यू हमको आना चाहिए. फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला फील्ड. नाउ दिस रोल अप समरी, lookup relationship, external lookup relationships, these three fields you just keep in mind, we will not be covering today because these are by themselves very complex things, तो इसको हम डिटेल में अलग से ही पढ़ेंगे. ओके, एंड दिस विल स्टडी विद एन होल ऑब्जेक्ट. सो जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो इट विल बी अ कंप्लीट कस्टम ऑब्जेक्ट. ओवरऑल हम उसी पे फिर काम करते जाएंगे ओवर द टाइम. तो इसलिए हम उस पे जो फील्ड्स बनाएंगे, देन वी विल कवर दीज थ्री अ लॉट मोर इन डिटेल. टुडे हम लोग बेसिक जो फील्ड्स बाकी सारे टाइप्स के अदर देन दिस रिलेशनशिप्स विल गो थ्रू दो. चेकबॉक्स फील्ड्स इज प्रीटी इजी, आपको नाम से ही सजेस्ट हो जाएगा. ट्रू या फॉल्स आपको सेव करना है. क्या ये एक्टिव कस्टमर है, यस और नो. These are the only two possible values, right? Is this a premium customer, yes or no, right? Existing customer है कि नहीं, yes or no. So जब भी आपको कोई boolean value सेव करनी है which is either true or false, then you will be using the checkbox field, right? Then we go to the currency. Currency again, most of these things as I told you, आपको नाम से ही आधी चीजें पता चल जाएगी. जब भी आपको कोई अमाउंट स्टोर करनी है कि ये कस्टमर का टोटल ऑर्डर्स कितने रुपए का है मेरे पास, राइट, या फिर ये कस्टमर ईयरली मेरे को कितना पैसा देता है. सो दैट इज व्हाट आई स्टोर इन अ करेंसी फील्ड. सो इट विल बी अ पैसा का अमाउंट मेरे को स्टोर करना है. सो देन आई विल एंटर द करेंसी. नाउ विद इन करेंसी यू हैव टू रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट all currency fields will map to USD, which is the United States dollar. अगर आपको किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है या स्टोर करना है, देन यू नीड सम डिफरेंट वैल्यू, राइट. तो वो हम करेंसी फिर सेट करना पड़ता है कि इस और का डिफॉल्ट करेंसी क्या है. इज इट रुपीज, इज इट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट, इज इट यूरो. तो वैसे हम सेट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट all currency field will have value which is the dollar amount. Okay, now we come to something which is called the date and date time. What is the difference with this? अब जो मैंने आपको पहला वाला एग्जांपल बताया कि सपोज मुझे पता करना है कितने दिन से कस्टमर है, दैट मीन्स आई हैव टू स्टोर अ डेट कि कब ये मेरा कस्टमर हुआ, राइट. सो दैट इज अ सिचुएशन फॉर विच ओनली डेट इज नीडेड फॉर मी कि ये सपोज 5th मई से मेरा कस्टमर है, राइट. सो दैट इज जस्ट अ डेट अमाउंट, तो हम लोग खाली डेट यूज करेंगे. नाउ देयर कैन बी सिनेरियोज जहां पे आपको डेट के साथ टाइम की भी जरूरत पड़ती है फॉर लॉगिंग पर्पसेस, मे बी इट्स सम सिक्योर डेटाबेस जहाँ पे आपको कोई ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दिखाना है, राइट. तो अब आप जब ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, सो यू जस्ट डोंट कीप इट डेट. आपके पास जब आप लोग यूपीआई पे ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट, तो उसकी हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें, क्या वो खाली डेट दिखा देता है कि ठीक है 19 तारीख को ट्रांजैक्शन किया था, नहीं. इट शोज यू 19 तारीख को इतने बजे भी ट्रांजैक्शन किया था, यस और नो, राइट. सो दोज काइंड्स ऑफ सिनेरियो जहां पे हमको डेट और टाइम दोनों चीजों को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हेन वी विल बी यूजिंग दिस डेट टाइम, राइट. आफ्टर दैट वी आर अगेन बैक टू वेरी बेसिक थिंग, ईमेल. जब आपको किसी का ईमेल आईडी ऐड करना है तो आप ईमेल फील्ड यूज करेंगे. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन दिस ईमेल एंड दिस टेक्स्ट. वो हम बाद में जब टेक्स्ट पे जाएंगे, देन वी विल डिस्कस दिस सिचुएशन. जियो लोकेशन के अंदर हम लोग जो जीपीएस में हम लोग का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, राइट, सो दैट वी यूज फॉर जियो लोकेशन. एंड आई कैन ऑनेस्टली से टू यू, दिस इज वन ऑफ द लीस्ट यूज फील्ड्स, क्योंकि लोकेशन सेव करने का जरूरत बिजनेस में बहुत कम स्पेसिफिक केसेस में ही पड़ता है. बट इट इज बेटर यू गाइज नो हाउ टू डू दिस. तो
जब हम एक्सरसाइज करेंगे फॉर अ कस्टम ऑब्जेक्ट, वी विल आल्सो बी क्रिएटिंग जस्ट जियोलोकेशन फील्ड, ताकि आपको एक आइडिया रहे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, which is the number, right? अब number, this, what does this number means? This you have to remember means any numeric value जब आपको store करना है. And by numeric value I don't mean just whole numbers or integers. Okay, it can be also decimal. Even within decimal, आप decimal में कितना points तक जा रहे हैं. You can store the value of pi as 3.14. You can store it as 3.141572. जितना आपको प्रेसिशन चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं, राइट. बट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर हैज टू बी 18 डिजिट्स. अब वो डेसिमल से पहले हो या बाद में, दैट इज अप टू यू. नंबर में हम वो स्टोर कर सकते हैं. नाउ दिस परसेंट, जब भी आपको किसी का परसेंटेज स्टोर करना है तो ये कहां से रहेगा हमारा, ऑब्वियसली 0 से 100 के अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट टाइप इज योर फोन, विच इज अगेन अ प्रीटी स्टैंडर्ड थिंग कि आप मोबाइल नंबर आपका ऐड कर रहे हैं. नाउ जो मैंने आपको एक डाउट बोला पहले कि ये टेक्स्ट, ईमेल और फोन में, लेट्स से मेरे को ईमेल आईडी स्टोर करना है, तो test@gmail.com. I can store it in a text field also, right? है तो कैरेक्टर्स ही, टेक्स्ट में भी हम स्टोर कर सकते हैं. I can store it in a email field also. Then आप में से कोई भी अगर मेरे को बता सके why I should not be storing it in a text field. Anyone can think of कोई भी scenario? कि हम तो टेक्स्ट में ही सब स्टोर कर सकते हैं, हम तो नंबर भी टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं, तो अलग से हमने वैल्यू फील्ड का टाइप क्यों बनाया है? बिकॉज वो एक स्पेशल फॉर्मेट यूज करता है, और जैसे किसी ने अपना ईमेल डालना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर वो टेक्स्ट में अगर हम डाल देंगे और हम गलत वो डाल देते हैं @gmail.com नहीं लगाते हैं, सीधा @ मिस कर देते हैं, gmail.com लिख देते हैं, वो एरर नहीं देगा. बट ईमेल का अगर टेक्स्ट वो डेटा टाइप लेके हम बनाएंगे तो वो आना चाहिए, @gmail.com आना चाहिए. मतलब it could be like this, but I'm not sure. That is the exactly correct answer. आप जब कुछ भी लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इट इज टेक्स्ट. आप नंबर भी लिख सकते हैं, आप डेट भी लिख सकते हैं, राइट. आपने 28 जनवरी लिखा 2025, दैट इज आल्सो बाय डिफॉल्ट इज टेक्स्ट. बट द बेनिफिट ऑफ आप ट्रू लिख दो टेक्स्ट के अंदर, दैट विल आल्सो वर्क. द बेनिफिट ऑफ द अदर टाइप्स इज दैट वैलिडेट्स इट, राइट. अगर आप ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे test@gmail.com, बाय चांस अगर टाइप करते वक्त लेट्स से @ मिस हो गया, तो अगर वो टेक्स्ट फील्ड होता तो वहां पे test@gmail.com सेव हो जाता. बट इज दैट अ वैलिड ईमेल आईडी? क्या वो करेक्ट ईमेल आईडी होगा? No. राइट. लेट्स से मेरे को मोबाइल नंबर स्टोर करना है किसी का, राइट. लेट्स से आई राइट 98736542, फिर गलती से मेरे से क्यू दब गया और उसके बाद 21 ऐड हुआ, तो टेक्स्ट में वो इनपुट ले लेगा, हाँ ठीक है, क्यू भी तो कैरेक्टर ही है, टू भी कैरेक्टर ही है, ले लिया. बट इफ आई मेक माई डेटा टाइप इज फोन, इट विल मेक श्योर कि आप यहाँ पे नंबर ही डाल रहे हैं, अल्फाबेट एंटर नहीं होगा, राइट. सो दीज आर बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड का वैलिडेशन जो रहता है कि मेक श्योर करें आप कि इस फील्ड में इसी टाइप का डेटा खाली स्टोर हो. दैट इज द रीजन कि हमने इतने सारे डिफरेंट टाइप्स में इसको ब्रेकआउट किया है इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग टेक्स्ट. इसलिए फोन अलग है, परसेंट अलग है, नंबर अलग है, ईमेल अलग है, डेट अलग है, राइट. टू मेक श्योर उस फील्ड में खाली डेट ही स्टोर हो सके, कोई गलती से अपना नाम एंटर करके सेव ना कर दे, राइट. सो जब भी आप फील्ड बना रहे हैं, योर अप्रोच शुड ऑलवेज बी विल एग्जिस्टिंग दीज टाइप विल बी बेटर. कौन सा टाइप से मेरा
डाटा ज्यादा करेक्ट होने का चांसेस बढ़ता है कि गलत इनपुट लोग ना कर सके, गलत एंट्री लोग ना कर सके। आप में से बहुत लोगों ने ऐसे वेबसाइट्स में देखा होगा, यूज किया होगा। अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर वेरी वेल डिजाइंड। आपको वहां पे नंबर देना है, आपने कैरेक्टर दे दिया, बोलेगा इनवैलिड, राइट। सो यू वांट डेटा का एक्यूरेसी, कि लोग गलत डेटा ना डाल सके। सो दैट इज व्हाई वी हैव ऑल दिस डेटा टाइप्स। नाउ अब फोन तक हमने किया, टेक्स्ट का हमने किया। नाउ यू विल सी देयर इज अनदर field here which is called a pick list. A pick list का concept, let me show you, explain you with an example. Let's say जब आप लोग कहीं पे let's take an example of कॉलेज, ठीक है। जब आप लोग कॉलेज वगैरह का काउंसलिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर जब आपने जॉब ज्वाइन किया है एंड आपको वो लोकेशन के लिए वो बोल रहा होगा कि आप कौन से सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, कौन से स्टेट में आप रहते हैं। तो आपके पास क्या आता है, एक ड्रॉप डाउन आता है नॉर्मली, जहाँ पे सारे स्टेट्स का नाम है इंडिया का, राइट, एंड यू सेलेक्ट वन, राइट, यू सेलेक्ट वन कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, राइट। सो व्हाट इज दैट, कि आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस आप यूजर को कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का स्कोप दे रहे हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट अ पिक लिस्ट, विच मीन्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जहां से आप कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes. कि Yes, हमको sir. कहाँ पे पिक लिस्ट यूज करना है, व्हेन वी हैव अ सेट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन वहां से हमको फिर कोई एक सिलेक्ट करना है, तो देन यू हैव अ पिक लिस्ट। अब लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल, बट इंस्टेड ऑफ योर एड्रेस, लेट्स से आपको जॉब प्रेफरेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपको पोस्टिंग मिले तो आप कौन कौन से शहर में जाना चाहते हैं, राइट। सो इन दैट केस आप क्या सिलेक्ट करेंगे, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, मल्टीपल आप सिलेक्ट करेंगे, नागपुर आपने सिलेक्ट किया, राइट। सो दैट इज अ सिनेरियो जहां पे वैसा ही यूआई वैसा ही रहेगा, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आएगा, लेकिन आप उनमें से मल्टीपल सिलेक्ट कर सके। दैट इज योर मल्टी सिलेक्ट लिस्ट, ओके। So the difference between pick list and multi select is just कि आप उसी ऑप्शन सेट में से क्या आप एक सिलेक्ट कर रहे हैं या आप मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहे हैं। दैट इज योर पिक लिस्ट डेटा टाइप। अब पिक लिस्ट के अंदर ही देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पिक लिस्ट। तो वो हम बाद में देखेंगे। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड से हम बनाते हैं, वो वी विल लुक एट दैट व्हेन वी आर क्रिएटिंग द फील्ड्स। बट फॉर नाउ पिक लिस्ट, मल्टी पिक लिस्ट, यहाँ तक का आपको जो फील्ड्स का डेटा टाइप्स है, इज एवरीवन क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? सर वन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर सिलेक्ट करना है किसी फॉर्म में, तो राइट, वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, मेल, फीमेल और एनी और अदर्स, तीन तीन ऑप्शन होंगे। ऑप्शन हो गए, राइट, तो राइट। उसमें उसमें हम पिक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट चेकबॉक्स भी तो यूज कर सकते हैं कि हम चेकबॉक्स विजिबल करा दें और एक सिलेक्ट कर लें। नो नो, सी ओके, देयर इज अ डिफरेंस हियर। सी आई टोल्ड यू, दिस इज अ चेक बॉक्स। आप जो बोल रहे हैं वो एक रेडियो बटन होता है, यहाँ पे मल्टीपल में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। चेक बॉक्स इज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, ओके, ओके। दैट इज अ रेडियो बटन जो आप यूआई पे बोल। सी राइट नाउ दिस, ये जो आपको फील्ड का दिख रहा है, दिस सेम ये थिंग रेडियो इज अ बटन है। रेडियो बटन, राइट। कि आपका मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर्स हो गया, मैंने कोई एक भी सिलेक्ट कर दिया। बट चेक बॉक्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, विद इन चेक बॉक्स क्या रहेगा, आइदर ट्रू है या फॉल्स है। और चेकबॉक्स में सर स्क्वायर वाला वो होता है ना? यस, ओके। ओके, दैट्स नॉट अ रेडियो बटन, दैट इज अ चेक बॉक्स फील्ड यहाँ पे है। सेल्सफोर्स के डिफॉल्ट फील्ड में रेडियो बटन्स का ऑप्शन नहीं है, ओके, ओके। सो अब रेडियो बटन तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे फिर, व्हाट विल बी द फील्ड जो आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे फिर?
Pick list. Request. राइट, हम 3 ऑप्शंस दिखाएंगे, कोई एक सिलेक्ट करना है. लेट्स गो विद द पिक लिस्ट. राइट, नाउ विद इन टेक्स्ट, अब टेक्स्ट के अंदर यू विल सी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हियर. राइट, एक जो हमारा है दिस इज योर बेसिक टेक्स्ट. अब यहां से नीचे तक अब जब जा रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज आइदर द लेंथ और हाउ इट इज स्टोर्ड. लेट्स से बेसिक टेक्स्ट जो हम लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 255 कैरेक्टर्स. आप कुछ भी एंटर करो, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक का लेंथ है. उसको आप कम भी कर सकते हो कि मेरे को बस 30 कैरेक्टर्स चाहिए. राइट, अब उसके अंदर आप ABC 123 हैश हाइफन @ जो लिखना है लिखो, बट एक कैरेक्टर लिमिट है एंड उसका मैक्सिमम इज 255. उससे कम का आप कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट एरिया. नाउ अगेन विद टेक्स्ट एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, 255 कैरेक्टर्स ही है, बट दिस इज नाउ मल्टी लाइन. ओके, आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो दैट विल ओनली बी अ सिंगल लाइन. लेकिन आपको चाहिए पहले एक लाइन हो, गैप है, फिर दूसरा एक लाइन हो, देन यू विल बी गोइंग विद टेक्स्ट एरिया. लेकिन लेंथ हेयर इज स्टिल 255 कैरेक्टर्स. ओके, then we go on to the text area long. Okay, what is this long? This just means कि आपका टेक्स्ट एरिया के जैसे ही आप मल्टी लाइन डेटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर लिमिट नाउ इज वेरी हाई. Instead of 255 characters, you can write up to 1,31,000 characters. ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे सोचिए, टेक्स्ट एरिया में आप ट्वीट कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में आप पूरा ईमेल लिख सकते हैं. राइट, थिंक ऑफ इट एज दिस काइंड ऑफ डिफरेंस. राइट, कि कितना टेक्स्ट हमको लिखना है. तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस विद द टेक्स्ट एरिया लॉन्ग. सो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग इज आल्सो प्रीटी कॉमन. नॉर्मल केसेस में हमारा क्या रहता है, इधर हम टेक्स्ट यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग यूज करते हैं. राइट, यू विल सी इन मोस्ट सिनेरियोस यही आपको दिखेगा बना हुआ फील्ड्स. अब आपके पास ये सब तो हमने कर लिया, ये तीनों फील्ड्स तो हमने देख लिया, विच इज योर बेसिक टेक्स्ट. बट व्हाट इफ जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपको चाहिए कुछ फॉर्मेटिंग, कि मैं कुछ बोल्ड में रखूंगा, फॉन्ट का साइज बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, मे बी नंबरिंग डालूंगा, बुलेट्स चाहिए मेरे को, कलर चेंज करना है मुझे टेक्स्ट का. राइट, जैसा हम नॉर्मल वर्ड फाइल में करते हैं. राइट, सो एनी काइंड ऑफ दैट कोड उसको बोला जाता है RTF, कि वो कोड इज नॉट अ बेसिक टेक्स्ट, इट इज अ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट. रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट है उसके साथ हमने उसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं. तो अगर आपको वैसा टाइप का चाहिए, देन यू गो विथ योर टेक्स्ट एरिया रिच. ओके, सेम थिंग एज टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, राइट, फोटोज डाल सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दैट इज योर टेक्स्ट एरिया रिच. Till this point, is it clear? Yes. Yes, sir. Fine. Now, the next field, I would say something which is not used very much. I myself have seen this, used in very less cases, because normally आप जब data store कर रहे हैं, it is for people to use. लोगों को वो data दिखाना है. Sometimes there are scenarios जहाँ पे आपको data store करना है, but सबको data नहीं दिखाना है. Right. And the reason I have seen this being in use is because I have worked in a lot of financial and banking projects. उन सब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सपोज ये मेरा कस्टमर है, तो यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर हो सकता है, उसका अकाउंट का नंबर हो सकता है, उसका अकाउंट का पासवर्ड सेव हो सकता है. सो वुड यू वांट कि आपका जो पासवर्ड है, लेट्स से आपका किसी भी बैंक में, लेट्स से HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, वुड यू वांट कि बैंक का कोई भी स्टाफ कभी भी लॉग इन करके आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड देख सके?
नो 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 नो, राइट। लेकिन आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड कहीं पे तो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। यस और नो? यस सर। राइट, आप जब कुछ एंटर कर रहे हैं वो तो उस पासवर्ड के साथ मैच करेगा कि सेम पासवर्ड डाला है कि नहीं, तभी आपको लॉगिन करने देगा। सो दैट मीन्स यू हैव टू स्टोर सम डेटा, लेकिन किसी को वो डेटा आपके अलावा दिखे ना। दैट इज व्हेन यू यूज द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, राइट। आई हैव वर्कड इन बैंकिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे लेट्स से जो लोन एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे लोग लोन अप्लाई करने के लिए करते हैं, तो वो बैंक का प्रोजेक्ट है। अब जो लोन अप्लाई कर रहा है उस टाइम पे यू गिव ऑल ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो उस एप्लीकेशन में आपका आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, आपका घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ रहेगा, बट इट विल बी एनक्रिप्टेड, ताकि कोई भी बैंक का स्टाफ जाके आपका आधार नंबर अचानक से ना देख सके। जिसको एक्सेस होना चाहिए खाली वही देख सके। सो why you have the encrypted text. Now after that these two, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, वेरी बेसिक। ऊपर जैसे खाली डेट स्टोर करना था, नीचे आपको खाली टाइम स्टोर करना है। और यूआरएल का मतलब इट्स जस्ट आपको कहीं पे लिंक स्टोर करना है। जैसे कस्टमर है, हर कस्टमर का एक वेबसाइट हो सकता है, कोई लिंक्डइन का प्रोफाइल हो सकता है, राइट। तो वो आप यूआरएल में स्टोर कर देंगे, राइट। सो आई विल जस्ट स्क्रॉल अ बिट अप एंड आप लोग एक बार ये पूरा लिस्ट देख लीजिए। Anyone has any issues understanding what all I said regarding all the different field types? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी कि क्या क्या टाइप का हमारे पास फील्ड्स है अवेलेबल? लीव दीज वंस फॉर नाउ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वी विल कवर दोस व्हेन वी गेट टू। उनके अलावा ऑल अदर सर फील्ड अभी टाइप्स आर क्लियर टू एवरीवन? यार बेसिक थिंग इज क्लियर, बट ये जो पीछे अभी हमने जैसे हमने ऑब्जेक्ट मैनेजर में पहले अकाउंट खोला हुआ था, तो राइट अकाउंट में हमारे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स के अंदर हमारा एक फील्ड है जिसका नाम है अकाउंट नंबर। राइट तो उसका आइडियली द डेटा टाइप शुड बी नंबर, बट हियर इट इज टेक्स्ट, राइट? राइट। ऐसे क्यों है सर? तो लेट्स टेक दिस वन। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ व्हाई दिस वन स्पेसिफिकली इज टेक्स्ट। जब आप अकाउंट नंबर बोल रहे हैं, नॉर्मली कैसा होता है, let's take a bank account number. Normally it is a 10-digit numeric, right? Indian bank account का is 10-digit numeric, right? खाली डिजिट्स रहेंगे, 10 डिजिट का होगा, तो उसके लिए मेरा ये आइडियली होना चाहिए था नंबर विथ लेंथ हैज 10, राइट। जी बट आप लोगों ने पीएफ का अकाउंट नंबर देखा है कभी? हाँ, समथिंग स्टार्ट विद यू आई समथिंग ऐसे करके। It's alphanumeric. एग्जैक्ट, राइट। सो पीएफ का अकाउंट नंबर इज अल्फान्यूमेरिक, राइट। लेट्स से आपका जो ये ऑनलाइन, ये हमारे सब पोर्टल्स है, राइट। सो लेट्स टेक, आई थिंक, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। आई थिंक लिंक्डइन का आईडी क्या है? Your voice वो is not आईडी, getting, sir. या नो नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग समथिंग। सो एनीवेज, सो जैसे लिंक्डइन का है जैसे फॉर पोर्टल, बट एग्जाम्पल एक जैसे होता है, जैसे हमारा जब भी अपनी पोर्टल्स वगैरह में लॉग इन करते हैं तो हमारे नाम के फर्स्ट टू लेटर कैरेक्टर्स प्लस देन आर एम्प्लॉय आईडी या लाइक सो द एग्जांपल आई एम 2D35880। वांट टू टेल इज कि जब आप कस्टमर का नंबर स्टोर कर रहे हैं एज एन अकाउंट नंबर, सो ग्लोबली देयर इज नो स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडिया में जैसे अकाउंट नंबर आपको न्यूमेरिक ही देने पड़ते हैं, क्योंकि पैन कार्ड वाले ट्रेस करते हैं, राइट। फॉर टैक्स पर्पसेस टू ट्रेस द अकाउंट, द रिक्वायरमेंट इज कि वो डिजिटल डिजिट्स ही होने चाहिए। लेकिन आपका खुद का पैन कार्ड का नंबर क्या होता है? इज इट नंबर्स और इज इट अल्फान्यूमेरिक? अल्फान्यूमेरिक। एग्जैक्टली। सो बिकॉज ग्लोबली कोई कन्वेंशन अभी है नहीं,
कि लोग अपने different organizations use different nomenclature for an accounts number, इसीलिए because they have see, मैंने आपको बोला था ना, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और जो स्टैंडर्ड फील्ड्स है उनका पर्पस ही सेल्सफोर्स ने देखा है कि ओके इस टाइप का फील्ड मोस्ट ऑफ माय कस्टमर्स यूज, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं ये रेडीमेड बना के देना शुरू कर देता हूँ। ओके, अ लॉट ऑफ दीज फील्ड्स यू सी हेयर इनिशियली था ही नहीं, ओवर टाइम ऐड होता रहता है। सेल्सफोर्स को जब नया रिक्वायरमेंट दिखता है कुछ नया कॉमन चीजें हैं, तो वो ओवर टाइम उसको ऐड करता रहता है, which is why this field list has gotten updated over time. Okay, even जो आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट अभी देख रहे हैं, अगर आप 8 साल 9 साल पहले चले जाएं तो तब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट एडेड हियर, जो बाद में ऐड हुआ है, राइट, बेस्ड ऑन कितना कॉमनली सेल्सफोर्स के कस्टमर्स उस टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब अकाउंट नंबर के लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड थिंग, कोई अल्फा न्यूमेरिक कर सकता है, कोई न्यूमेरिक कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड फील्ड बनाया है उन्होंने बोला ऐसा बनाते हैं कि सब यूज कर सकते। ओके, राइट। नाउ वही मैंने आपको बोला, राइट, यू विल बी सिनेरियोस कि आप पहले देखेंगे कि क्या मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स बनी हुई फील्ड को रीयूज कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट, फिर भी लाइक तो देन इट वुड बी बेटर। बट दिस इसका रिवर्स भी एप्लीकेबल है, मे बी आप जो नाम सोच रहे हैं उसी नाम का उसी टाइप का स्ट्रक्चर का फील्ड आपको मिल जाए, लेकिन आप देखेंगे नहीं डेटा टाइप तो मेरे को जो चाहिए वो नहीं है, तब आप क्या करेंगे, यू विल क्रिएट योर ओन फील्ड, राइट, कि मेरे को चाहिए नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर नंबर नाम का एक नया फील्ड बना लूंगा विच विल बी नंबर। आपके पास वो ऑप्शन तो ऑलवेज है, राइट। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चन, जो हमारे पास ये जो फील्ड्स थे, मैंने आपको क्या कहा था कि हमको कस्टमर का एक नंबर हमको स्टोर करना है, नया हमको फील्ड बनाना है, कस्टमर का आईडी हम स्टोर करेंगे। तो आउट ऑफ ऑल द फील्ड्स हियर व्हाट शुड बी माय ऑप्शन जो मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर स्टोरिंग अ कस्टमर नंबर। Data type should be number. ओके, डेटा टाइप कैन बी नंबर, गुड। एनी अदर ऑल्टरनेटिव, किसी और का कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सोच कि नंबर के अलावा auto number. सॉरी, Auto number that we will add someone on other account, so that will update the number. okay, okay, we can have an auto number, fine. So yeah, I would say the two most feasible approaches are number और auto number, हम दोनों यूज कर सकते हैं। नाउ इन अवर केस अगर मेरे को चाहिए कि नहीं मैं न्यूमेरिक रखूंगा, दूसरे सिस्टम के साथ भी काम करना है, लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी कोई और सिस्टम है, राइट, जहाँ पे भी मैं अभी करंटली डेटा रखता हूँ कस्टमर का, और अभी मैं सेल्सफोर्स में माइग्रेट कर रहा हूँ, तो मेरे सारे पुराने कस्टमर्स का आईडी इज इन अ नंबर, तो देन नंबर विल बी अ बेटर ऑप्शन। लेट्स से आई वांट कि नहीं मेरे को स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई करूँ, तो देन आई विल गो विथ ऑटो नंबर। सो इन दिस केस आई विल गो थ्रू बोथ, मैं दोनों से एक एक बना के आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है, और अदर आई थिंक नो आई लीव वन फॉर यू गाइस, वन आई विल शो। ओके, सो लेट मी शो यू देन ऑटो नंबर। चलो हम ऑटो नंबर देखते हैं। अब लेट्स गो विद द टाइप ऑफ ऑटो नंबर। नाउ ये देखिए, whenever you are creating a fields you will see here this is like the step 1 for a lot of those things। जब भी आप कुछ मॉडिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं आप देखेंगे सेल्सफोर्स से मल्टीपल स्टेप्स में चीजें बिल्ड कर देता है कि पहले स्टेप 1 में ये करो, स्टेप 2 में ये करो, एंड दिस इज कॉमन। ओके, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, फील्ड का टाइप सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डू द लेबल। अब हमारा लेबल क्या होना चाहिए, लेबल यू हैव टू रिमेंबर, सी लेबल मेरा यहाँ पे दिखेगा ऑन अकाउंट,
राइट, यहाँ पे ऐसे मेरे को जो दिखाना है लेबल, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टोर एन आईडी वैल्यू, तो व्हाट शुड बी अ सजेस्टेड नेम फॉर दिस, एनीवन? customer ID. या वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, नाम देख के आदमी को समझ आ जाए। गुड। सर कहाँ पे दिखाना है वो पीछे जरा एक बार, आई जस्ट गेट इट। ये जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रहा है, अकाउंट साइट दिख रहा है, अकाउंट नंबर दिख रहा है, राइट, वैसे मेरे राइट, को दिखाना है। सो ओके, कस्टमर आईडी इज अ सिंपल वन, जो भी देखेगा उसको समझ आ जाएगा। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, नॉर्मली हमने वहां पे क्या देखा था, फील्ड का, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम और लेबल वर सिमिलर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, राइट। देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि जब आप कोड में कोई फील्ड आपने देखा, कोड में आपका एपीआई नेम आया है लेट्स से अकाउंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन यूआई पे दिखता है कस्टमर आईडी, तो अचानक से क्या डेवलपर को क्लिक करेगा क्या मैं इसी फील्ड को लेकर काम कर रहा हूँ? So normally your label and API name should be almost same if possible. So what I've done is I've made it as a customer ID as the label. Now what Salesforce does is जो भी आप लेबल डालते हैं उसके बेसिस पे पहले वो एक ऑटोमेटिक एपीआई नेम भी जनरेट कर देगा, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर दैट, वर्ड्स विल रिमेन एज इट इज, स्पेस की जगह पे ऐसे अंडरस्कोर ऐड हो जाए। सो दिस इज माय एपीआई नेम, दैट इज माय लेबल। अब कस्टमर आईडी में दिखा रहा हूं, सो फॉर ऑटो नंबर दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑटो नंबर विच इज अ डिस्प्ले फॉर्मेट, कि आप कोई एक फॉर्मेट में अगर रखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो समवन हैड मेंशन्ड कि ऑटो नंबर यूज करते हैं, हु हैड मेंशन्ड कि लेट्स यूज ऑटो नंबर फॉर दिस? Me, sir, Akash. आकाश, ओके आकाश। तो अब आपने जब बोला ऑटो नंबर, सो लेट्स गो विथ योर एग्जांपल, तो आप अल्फा न्यूमेरिक में क्या डालना चाहेंगे शुरू में? Something Think of like something 2025-01. Okay, you want to start, okay, 20 so 2025 or 01. okay, right, so this as you are saying is something, अब यहाँ पे issue क्या होगा, you have to make it far more generic. Why? अब ये फील्ड तो मैं बना दूंगा, अब जैसे जैसे मेरे कस्टमर ऐड होते जाएंगे, तो जब 2026 में मेरे कस्टमर ऐड होंगे, लेकिन उनके नाम के सामने 2025 1001 ऐड हो जाए, इज दैट अ गुड स्ट्रक्चर? Not. नो, राइट, यू हैव टू हैव समथिंग जेनेरिक। सो कैसे हम करते हैं, नॉर्मली ऑटो नंबर के स्टार्टिंग में हम कोई अल्फाबेट जाते हैं विच इज काइंड ऑफ अ समेशन, सो लेट मी राइट इट इन दिस वे, CID and then I'll add, this is the format, तो ये क्या होगा, कस्टमर आईडी, देन आई हैव रिटन 6 zeros, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू रिमेम्बर यहाँ पे हम कितने जीरोस लिखते हैं उसका क्या मतलब होगा, ये CID 000001 से शुरू होगा और ये CID 6 टाइम 9 पे खत्म हो जाएगा। अब अगर मुझे पता है मेरे कस्टमर विल ओनली बी से at maximum 500, so then I can keep it as this, 1 से शुरू होगा, CID 500 तक गया। अब अगर इससे ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, राइट, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जब आप फॉर्मेट दे रहे हैं तो जीरोस के सामने क्या ऐड होगा, सो दैट नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट अ लिमिटेशन, इट मींस सामने कितने जीरोस रहेंगे। ओके, अगर मैं खाली सिंगल जीरो लिखता हूं, so then you will see 1 will be like this, 250 will be like this, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा। अगर मैंने 3 जीरो रख दी तो मेरा 1 will end up being 001, 002, 005, राइट, बट उसके ऊपर जब जाऊंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 जीरोस रखता हूं, so then it will be like 5 times 0 and then 1. Just one second guys.
सॉरी आई एम बैक। तो अब यहाँ पे इट इज मोर लाइक हमको किस टाइप के स्ट्रक्चर चाहिए। सो नाउ यू गाइज रिकमेंड, डू यू वांट कि खाली CID 1 2 से शुरू हो, या फिर यू वांटेड 001 002 003? नो वन, फाइन, लेट्स स्टार्ट विथ डिफॉल्ट कि हमारा CID सिंगल जीरो देंगे, तो मतलब 1 विल बी 1 2 विल बी 2 ऐसे करके हमारा चलता रहेगा। स्टार्टिंग में कोई जीरोस ऐड नहीं होंगे, और कौन से नंबर उससे मैं चाहता हूं कि ये स्टार्ट हो, आई वांट इट टू स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन अभी तक जो मैंने बोला? Yes. एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? सर हम No one? CID की जगह, हेलो हाँ बोलिए। सर हम CID की जगह कोई और भी यूज कर सकते हैं क्या? राइट, लेट मी राइट AID, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, AIN। जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसके बेसिस पे आप रख सकते हैं। यू कैन जस्ट कीप C, राइट? सो दिस इज जस्ट फॉर्मेटिंग। ओके, कि सर आप डिस्प्ले इसका कैसे करना फॉर्मेट चाहते यही है क्या? हेलो सर, हैं। हाँ, यस। इसका फॉर्मेट यही है क्या? मतलब न्यूमेरिकल देन डैश देन इन ब्रैकेट कैरेक्टर? नहीं, यही मैंने आपको ये वाला दिखाया ना। सी, इट कैन बी इन दिस वे, राइट? आप स्टार्टिंग में नंबर दे सकते हैं। आप जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में, यू कैन ऐड years and months also, राइट? खाली आप डायरेक्ट ओके वो ओके भी दे सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, दिस इज जस्ट अ डिस्प्ले फॉर्मेटिंग, कि ये आपको अलाउ करता है कि आप ऑटो नंबर को UI में दिखाएंगे कैसे। ओके, या व्हाट? सो हियर यू कैन पुट डेट, यू कैन पुट, राइट? सो दिस इज जस्ट अ सर मतलब फॉर्मेटिंग, ये सो लेट मी कीप इट। सर मतलब इसका ये है कि जितने फॉर एग्जांपल हमने 000 लिख दिया, तो 000 डज नॉट सिग्निफाई कि वो 999 रिकॉर्ड्स प्लेस होता है। इट नहीं, सिग्निफाइज कि या अगर इट हम डज नॉट सिग्निफाई दैट। वो जस्ट बोलेगा कि मेरे नंबर के स्टार्टिंग में आई शुड हैव 2 इतने लीडिंग जीरो जीरोस, हो मतलब सकते हैं, राइट? या कितने जीरोस रहेंगे अप टू अ रेंज। तो अगर मैं 000 देता हूँ, विच वुड मीन मैं 3 डिजिट के नंबर दूंगा तो वो डायरेक्ट लेंगे 250 230 570 लूंगा, तो C230 C50 570 करके आएगा। इफ आई राइट C72, तो वो बन जाएगा क्या, C072। ओके, राइट, 3 जस्ट से अ कम फॉर्म डिजिट ऑफ है तो राइटिंग स्टार्टिंग इट में एक रहेगा। या अगर मैं और नंबर सिंगल ऑफ डिजिट लेता हूँ C9, तो वो इट विल बिकम C009। ओके, ओके, एंड देन जब 999 के ऊपर जाएगा तो देन इट विल बी एनीवे 4 डिजिट, C1000 C1001 C5000, वैसे चलता रहेगा। तो जीरो का चैप्टर वहीं पे खत्म। सो नॉर्मल रिकमेंडेशन इज फॉर दिस जीरो इज, या तो आप जीरो ना दे, विच वुड मीन जस्ट कीप इट अ सिंगल जीरो। सिंगल जीरो मतलब स्टार्टिंग में जीरो ऐड नहीं होगा, राइट? या तो आप जीरो ना दें, या फिर अगर आप जीरो दे ही रहे हैं, इतने जीरो दें ताकि आपका रेंज के कम ही रहे। वाई? बिकॉज डेटा वाइज इट लुक्स गुड कि आपका लेट्स जैसे अकाउंट नंबर, सबका अकाउंट नंबर 10 डिजिट ही है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट ही है, राइट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट लुक वाइज राइट। अच्छा फील करने के लिए नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, अच्छा अगर मेरे पास 5000 कस्टमर्स होंगे, 9000 कस्टमर्स होंगे, सो लेट मी मेक दिस सी एज 6 zeros, ताकि हर कस्टमर का आईडी नंबर विल ऑलवेज बी 7 डिजिट्स। ओके, सो जस्ट यूनिफॉर्मिटी के लिए यू कैन ऐड zeros or you don't add, right? Till now, is this clear to everyone? ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? जी। Fine. Now
Now this is a very important flag जो आपको क्लिक करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। What does this mean? ये जब मैं फील्ड बना रहा हूँ दैट विल मीन अब से मैं जब भी कोई कस्टमर बनाऊंगा राइट, तो उसका कस्टमर आईडी का फील्ड में वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। पहले कस्टमर का क्या वैल्यू होगा? C1 एनीवन? C1। उसके बाद C2, C3, ऐसे कंटिन्यूअसली खुद से ही बढ़ता जाएगा। नाउ द इशू आई हैव इज मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स हैं राइट, तो क्या इनके लिए कस्टमर नंबर फिर खाली रह जाएगा और डू आई वांट इनको भी एक नंबर मिले? व्हाट शुड बी माय अप्रोच? इनको भी एक नंबर मिले। इनका भी एक नंबर होना चाहिए राइट, क्योंकि अगर मेरे सारे अकाउंट्स पे कस्टमर आईडी है तो इनका भी होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट जस्ट दिस चेक कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए भी आप ऑटो नंबर बना दो। अब जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के कोई रिकॉर्ड्स होंगे नहीं, तो ये इसको आप सिलेक्ट करो ना सिलेक्ट करो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जिसके रिकॉर्ड्स हैं उस पे आप ऐसा फील्ड बना रहे हो देन यू हैव टू टेक कंसिडरेशन कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे क्या आएगा। सिमिलरली जब आप दूसरे टाइप का फील्ड बनाते हैं, लेट्स से नंबर वगैरह का फील्ड बनाते हैं, वहां पे ऐसा एक सिमिलर चेकबॉक्स होता है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे क्या मैं उसको 0 कर दूं या ब्लैंक छोड़ दूं। ओके, सो यू हैव टू टेक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आल्सो इनटू कंसीडरेशन। तो फॉर दिस फील्ड टाइप ये एक चेक हमको लगाना पड़ा, दूसरे फील्ड टाइप्स के लिए दूसरा एक चेक रहेगा। तो जब हम दूसरा फील्ड बनाएंगे हम वहां पे वो भी देखेंगे। नाउ these two fields are something I recommend as a good practice as a Salesforce admin, as a Salesforce developer. You should always think of populating. Okay. पहला है description. What is this description? Let's go to any of these fields. Right, existing जो fields हैं. Let's go to account owner. Right. For all these standard fields आपको दिखेगा ये एक blank है. This description and help text these are blank. लेकिन जब आप कोई कस्टम फील्ड बना रहे हैं, so this is something a user has created, so there must be a purpose ये फील्ड बनाने का, कि बाद में कोई डेवलपर अगर आके देखे ये फील्ड आपने बनाया है, क्यों बनाया होगा। so it is always a good practice to make sure आप फील्ड्स में एक डिस्क्रिप्शन ऐड करें, right? so this will be, let's say, auto number field to generate a unique customer ID for every account record starting from C1, राइट। तो बाद में कोई भी किसी भी फील्ड इस फील्ड को ओपन करेगा उसको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, अच्छा ये वाला फील्ड इस पर्पस के लिए बनाया गया है। सो ऑलवेज पॉपुलेट दिस फील्ड व्हिच इज द डिस्क्रिप्शन। अब ये वाला फील्ड हम जैसे डेवलपर के लिए बना रहे हैं, सिमिलरली हम यूजर के लिए भी एक फील्ड बना सकते हैं। ओके, व्हाट इज दैट फील्ड? व्हिच इज द हेल्प टेक्स्ट। अब हेल्प टेक्स्ट कैसे यूज होता है? let me see one of the fields here which has a help text. help text नहीं है। Let's go to contacts. कहीं तो होगा। Okay, no worries. Let's just modify our help text. अब जो डिस्क्रिप्शन हम जो डाल रहे हैं, so that is for developer कि हमने ये फील्ड क्यों बनाया है, for an admin. हेल्प टेक्स्ट हम बनाते हैं for a user, right? हेल्प टेक्स्ट में let's say just I want to write customer identification number. That is all, right? Let's go to next. Report types we will study later on when we study with report.
अब हमने फील्ड तो बनाया, फील्ड का टाइप सिलेक्ट किया, फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। द थर्ड स्टेप इज फील्ड का सिक्योरिटी। हाउ डू वी कंट्रोल फील्ड का सिक्योरिटी? तो सेल्सफोर्स के अंदर जो यूजर्स है, अलग अलग यूजर्स का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, उसके बेसिस पे उनका देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफाइल। फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, हर यूजर को कोई एक प्रोफाइल एलोकेटेड होता है बेस्ड ऑन व्हाट इज देयर रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Someone will be a system administrator, someone will be a standard user, there will someone who is just a website user, API user रहता है एक, right? API only user रहता है, someone who is a read only user, उसको सब कुछ read only में दिखता है, वो कुछ modify नहीं कर सकता, right? So this page lets you configure कि ये field का access किस किस profile को मिलेगा। What is a profile? We will study a lot more in detail, but for now just keep it in this way. Every user has a profile, right? And profile assign होता है based on function कि उसका उस org में काम क्या है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि उस प्रोफाइल के लिए ये फील्ड विजिबल होना चाहिए, ये फील्ड रीड ओनली होना चाहिए। विजिबल है मतलब उसको यूआई पे दिखेगा, रीड ओनली है मतलब वो उस फील्ड को ऐसे एडिट नहीं कर पाएगा। ओके, सी दिस वन, यू कांट एडिट दिस, दिस इज रीड ओनली, बट ये सब आप एडिट कर सकते हैं, these are not read only, right? This one again you cannot modify, this is read only। तो visible का मतलब वो उसको दिखेगा, read only का मतलब he cannot modify this। अब in this case you will see visible को मैं तो modify कर पा रहा हूँ, but read only को I cannot modify, इसको मैं अनचेक नहीं कर सकता। Why I cannot uncheck this? Because auto number का functionality क्या है, वो खुद से generate हो जाएगा all the time, right? तो अगर खुद से किसी का कस्टमर आईडी जनरेट होता है, should we allow the person to change his customer ID? No. No. Right? Something which we are No, sir. generating automatically, वो तो फिर उसको modify नहीं करने देना चाहिए, which is why auto number field will always be read only. Same thing will also happens with that formula field. फॉर्मूला फील्ड का वैल्यू कैसे आएगा? आपने कुछ फॉर्मूला लिखा है, उसमें जो कैलकुलेशन होगा उसके बेसिस पे सेट होगा। तो उसके बाद क्या मुझे फिर यूआई से उसको एडिट करने देना है उसको? नो, राइट? क्योंकि अगर मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट करके मैंने निकाला, अच्छा ये 7 साल से है, शुड आई लेट हिम एडिट दैट एंड मेक इट 20 years? सर वो कर ही नहीं पाएगा ना, वो तो डिपेंड करेगा उस फॉर्मूला के इनपुट्स के अंदर। Exactly, which is why same as this auto number for formula field also आप देखेंगे ये read only will by default be selected और आप इसको अनसिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो कैलकुलेट हो जा रहा है, तो यूजर क्या एडिट करेगा, राइट? सो सेम फॉर दिस ऑटो नंबर में भी रीड ओनली वो है। फॉर अदर टाइप्स ऑफ फील्ड यू विल सी, जैसे आप ये विजिबल को चेक अनचेक कर पा रहे हैं, रीड ओनली को भी आप चेक अनचेक कर पाएंगे। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये फील्ड हमको कहाँ पे ऐड करना है, राइट? ये जो सेल्सफोर्स में जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स आपको दिख रहा है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ यूआई, अ लेआउट, पेज लेआउट। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि ये फील्ड क्या मेरे को पेज लेआउट पे ऐड करनी है, और अगर ऐड करनी है तो कौन कौन से लेआउट में ऐड करनी है। सो फॉर नाउ वी विल जस्ट सिलेक्ट ऑल। हाउ वी यूज दिस लेआउट व्हेन वी आर वर्किंग, तब हम कस्टम फील्ड्स बना के स्पेसिफिक लेआउट्स में ऐड करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स सिलेक्ट ऑल एंड सेव। राइट, नाउ इट इज शोइंग मी अ वार्निंग। व्हाट इज द वार्निंग इट इज शोइंग? कि generating auto number for existing records may take a few minutes. Click OK to start auto number generation. ये वार्निंग मेरे पास आया क्योंकि मैंने वो वाला चेकबॉक्स सिलेक्ट किया था कि जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं आप उन पे भी कस्टमर आईडी पॉपुलेट कीजिए।
अब अभी ये तो मेरा ट्रेनिंग ऑर्ग है, यहाँ पे लेट्स से 20 ही 10 या 12 अकाउंट है, तो 10-12 अकाउंट के लिए C1 से C12 तक जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? मे बी सम सेकेंड्स, राइट। लेकिन जब एग्जिस्टिंग कोई बड़ा प्रोजेक्ट का ऑर्ग होगा, वहां पे लेट्स से 25,000 अकाउंट्स हैं, तो उनके लिए तो एक एक करके अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सो इट समटाइम्स टेक टाइम, विच इज वाई सेल्सफोर्स आपको ये वार्निंग दिखाता है कि आप जब भी ऑटो नंबर बना रहे हैं तो वो इट विल टेक सम टाइम, नो वरी, वी विल क्रिएट फॉर दोस। अब ये मेरा फील्ड हुआ, अपडेट हुआ, लेट्स गो जाके रिफ्रेश करते हैं अकाउंट पे मेरा आया कि नहीं कस्टमर आईडी। Do I see a customer ID here? Did I add it in the page layout? ऐड किया ना हमने? सर Maybe. अकाउंट में ऐड करा था ना कस्टमर आईडी, अकाउंट को नॉट इन Oh, कॉन्टेक्ट। sorry. I'm on a contact. Fine. Thank you. Thank you. Let's go to account. Let's see. Do I have a customer ID here? Where is the customer ID? Customer ID. Why did it not get added? The customer ID. Did we not add it on the page layout? Oh, no, create. Field to create for. Let me hard refresh the page. Right. See, customer ID मेरा add हो चुका है. Okay. So this is now C2. And you will see this is read only. तो ये हम edit नहीं कर सकते. Is this clear now? How to create a field? Yes, sir. यस सर। Now one thing you will notice, इन सब field में एक चीज नहीं है जो हमारी field में add हो चुका है, which is this one. जिस पे hover करने पे ये मेरे को इस field का information दे रहा है कि what is this? This is the customer identification number. ये कहाँ से आया? This is because of that help text जो मैंने add किया था, right? So now for that field, if you see, description was जो हमने बैकएंड डेवलपर के लिए बनाया है एंड हेल्प टेक्स्ट वाज जो मैंने कस्टमर के लिए बनाया है, राइट। सो in most cases you will see people don't need to use the help text, so this will be something which is blank, but I just added this to show you guys कि अगर आप help text ऐड करते हैं तो ऐसे UI में फील्ड के पास से दिख जाएगा। इन अवर केस फील्ड के नाम से ही पता चल रहा है ये कस्टमर आईडी है, तो अलग से फिर हेल्प टेक्स्ट दिखाने का जरूरत है नहीं, तो लेट्स नॉट add it and let's save. Right. Now let's refresh this. And why did it not go? Must be some cache issues. It's not going. But ideally ये क्योंकि यहाँ से हट चुका है तो वो हेल्प टेक्स्ट पे हट जाना चाहिए. Not sure what's happening. Must be some cache. Anyways, no worries. ये बाद में फिर हट जाएगा. वहाँ से हार्ड But- रिफ्रेश कर लो। नहीं, I did hard refresh, but sometimes this gives. I think my cache is anyway full. That's why कुछ हो रहा होगा. No worries. Now one thing you have to remember. Okay, let's go back to the field. So अब मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड फील्ड है, बट हम कस्टम भी पूरा बना सकते हैं. So there is one very clear difference which happens as soon as you create something custom.
ये जो कस्टमर आईडी फील्ड है, इफ यू रिमेम्बर, हमने एपीआई नेम में इतना ही दिया था, राइट? बट ये बाद में दिस गॉट एडेड, राइट? ये जो अंडरस्कोर सी है, this will automatically get added for any custom field you create, for any custom object also you create. इस अंडरस्कोर सी से आपको देख के ही पता चल जाएगा ये फील्ड या ये ऑब्जेक्ट क्या स्टैंडर्ड है या कस्टम किसी ने बनाया है. ओके, to identify that, this underscore c always gets added for any custom field. ओके, फिर दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट में, स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों में. हाँ देखो, ऑब्जेक्ट मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फील्ड्स मेरी है, बट ये जो फील्ड स्पेसिफिकली बनाई है ये तो मैंने बनाई है, राइट? सो दिस फील्ड इज अ कस्टम फील्ड, दिस इज नॉट एन आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड. सो इसीलिए ये अंडरस्कोर सी इज जस्ट शोइंग कि ये वाला फील्ड इज अ यूजर मेड फील्ड, दिस इज अ कस्टम फील्ड. ऑब्जेक्ट लेवल पे जब हम जाते हैं, you will also see, I think इसमें मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल किया था, so there should be some custom objects. Okay, I did not install a package, but मैंने एक पैकेज आई थिंक इंस्टॉल किया था, तो कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे. तो जब कस्टम ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर सी ऐड हो जाए. सो एनी कस्टम यू क्रिएट दैट, उसका एक आइडेंटिफायर आ जाता है यूजिंग अंडरस्कोर सी. Is this clear to everyone? Sir, clear, but Okay. There are other fields like active और custom priority. वो तो स्टैंडर्ड Yes. फील्ड थी ना, हमने तो नहीं बनाई, उसमें भी अंडरस्कोर सी. नहीं एग्जैक्टली. सो ये जो अंडरस्कोर सी है, व्हाई दीज आर नॉट स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू रिमेंबर स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स जो है, राइट? लेट्स गो टू दिस, राइट? सो इफ यू सी इस ऑर्ग के अंदर, जब ये वाला मैंने डेवलपर एडिशन से नहीं बनाया था, ये मैंने ट्रेल हेड से बनाया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेल हेड से भी पैकेजेस कुछ इंस्टॉल हुए हैं, तो वो वाला फील्ड्स आर कस्टम फील्ड्स जो उस पैकेज के थ्रू यहाँ पे आए हैं. ओके, सो दोज आर कस्टम. बाय कस्टम यू हैव टू रिमेम्बर, मैं खाली इस ऑर्ग में मैंने बनाया है तो वही अंडरस्कोर सी आएगा, ऐसा नहीं है, राइट? अगर किसी ने किसी और ऑर्ग में अंडर कस्टम फील्ड बनाया है और उसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो वो यहाँ पे भी अंडरस्कोर सी से आएगा. अब एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में कैसे डेटा जाता है वो भी हम बाद में देखेंगे, बट दिस अंडरस्कोर सी मीन्स दिस इज कस्टम, एंड विदाउट दिस मीन्स जो सेल्सफोर्स का जो एकदम बेसिक जो कोर फंक्शनैलिटी है उसमें जो स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स ने बनाया है. ओके, अग्रीड सर, वो मुझे समझ आ गया. जैसे आपने ये बताया कि आपने ट्रेल हेड से बनाया था, तो उधर से कहीं से इंपोर्ट होके ये वाला फील्ड आया होगा, राइट? बट मैंने तो डायरेक्ट बनाया और मेरा इंस्टॉल्ड पैकेज में भी देयर इज नथिंग. नहीं, आपके उसमें देखो जो एप्स के अंदर फिर इंस्टॉल रहेगा ना. सो सी जो सेल्सफोर्स का, व्हेन यू गेट अ सेल्सफोर्स ऑर्ग, तो उसके अंदर देयर हैव बीन मल्टीपल ऑटोमेटिक अपडेट्स जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं. ओके, which is why a lot of those things, think of it this way, there is a specific set of core Salesforce, जो Salesforce के there are multiple editions out there. Okay, जैसे आप लोगों का डेवलपर एडिशंस है, मेरा प्लेग्राउंड है. सिमिलरली बिजनेस के लिए देयर इज एंटरप्राइज, अनलिमिटेड, ऐसे मल्टीपल ऑर्ग्स के एडिशंस हैं, राइट? सो व्हाट Salesforce has is a very basic set of data structure which is applicable everywhere. That is that standard set. उसके बाद there are some custom values जो over time Salesforce ने add किए हैं, but those are still not part of that core data set. तो Salesforce क्या करता है, जब कोई भी नया org बनाता है तो चलो ये भी हम add कर देते हैं, but that is a custom field that someone has created जो उनके core data set से नहीं आए हैं. So those will also be available in every org.
but because it is not part of the Salesforce core data set, which means it is a custom data set, इसलिए उसमें आपको __ C दिखेगा. And it is not just on account. There are a lot of other objects जिसके अंदर भी आपको दिखेगा. I think for order line items there were a few which were added, or order. So you will find these kinds of custom fields which are available on multiple different objects also. It's not on order. What is it in? Product. Okay. So by custom, I don't mean कि खाली मैंने जो बनाया है. It is anything जो Salesforce के core data set में नहीं था, वो __ C add होके आ जाए. Okay, this is something which is custom. Okay, where was that? It was in lead. I recall similar fields in some other websites also. Right. See. Right. ओके सर. Okay. मतलब कोड डेटा सेट में जो नहीं था जब बनाया था सेल्सफोर्स ने, तो उसके बाद हाँ, जो भी आया but है, उसके बाद these are custom fields which people have created, and उन्होंने क्या किया, ठीक है हम ऐड कर देते हैं, हम ये भी org में डालना शुरू कर देते हैं because people have used these a lot more, right? But it is still not part of the Salesforce core data set, इसीलिए ये custom की तरह ही दिखता है. अगर Salesforce adds these fields to their data set, किसी रिलीज में मे बी समर विंटर स्प्रिंग में ऐड कर देते हैं, उसके बाद you will start seeing these come as only primary. ओके, तो ये फील्ड काउंट तो बढ़ रहा है, राइट, ओवर टाइम. तो जब Salesforce अपने डेटा सेट में ऐड करेगा कुछ, देन इट बिकम्स बाय देयर डेफिनेशन, नाउ दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड, कि ये हम बना के दे रहे हैं, राइट. अंटिल दैट इट इज कस्टम. ओके ओके. ओके. Right. So till here, till this field we created, anyone has any questions, any queries? किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स, राइज? नो सर. सर इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मतलब कैसे की जाए? ये थ्योरेटिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो थोड़ा. हाँ. Okay. Okay. Good question. I think few of other people will also have the same question. If Yes, I'm sir. not Yes, wrong. sir. Same question. Yes, sir. Right. So for this, what I would suggest to you guys is, जैसे मैंने ये एक field बनाया, right? So this was what I created for an auto number. तो आप Your ये screen is recording not देखिए visible. कुछ. No, I'm Sorry. not sharing screen. Okay, okay. Yeah, I'm not sharing screen. Right. So just give me 1 second. राइट. तो अब ये जो मैंने एक फील्ड बनाया है जहाँ पे मैंने आपको ये डेटा टाइप आपको दिखाया था, राइट. कोई एक डेटा टाइप का मैंने वॉक थ्रू करके दिखाया. व्हाट यू गाइस विल हैव टू डू इज, आई विल शेयर यू अ एक्सरसाइज जहाँ पे आप अकाउंट ऑब्जेक्ट को लेके ही हम काम करेंगे. आप बाकी जितने टाइप का फील्ड्स हैं, राइट, you have to create all types of fields. Okay, you have to create all different types of field. For now, let's say auto number मैंने बनाया, बट बाकी जो नंबर, टेक्स्ट वगैरह है, इसके लिए आपको फील्ड्स हैंड्स ऑन आपको करने पड़ेगा. ठीक है. व्हाट आई विल प्रोवाइड यू इज एन एक्सरसाइज जो आपको एक रफ गाइडलाइन देगा ऑन व्हाट टू डू. बट
स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं. यू हैव टू गो थ्रू व्हाट ऑल द स्टेप्स आई डिड. दूसरे फील्ड्स के लिए देयर विल बी सम डिफरेंट स्टेप्स जो आपको करना पड़ेगा, बट प्लीज मेक श्योर यू फॉलो ऑल दोस थिंग्स. एंड today, tomorrow, before tomorrow's class, basically, you should try to uh, learn and practice all these courses. At least अलग अलग टाइप के आप फील्ड्स बना के देखेंगे ऑन द ऑब्जेक्ट. बट सर जैसे फॉर एग्जांपल वो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में हाँ. सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी सब कुछ वो बना दिया, जो बेसिक सब कुछ होता है, जो रिक्वायरमेंट राइट. रहती है. तो उसमें हम कुछ भी रेंडमली अभी कुछ भी मतलब जस्ट टू यूज द डेटा टाइप्स कुछ भी रेंडमली बनाए. हाँ, नो, I'll share you exact. So I'll share you a model जहाँ पे आपको अकाउंट के रिलेटेड जो जो डेटा रहेगा वो सब मैं आपको शेयर करूंगा. Right, I have that file somewhere. Let me just share that. Let me just share that here. This one is for not for this. So what I want you to do is just create a custom field आप बना के देखेंगे. Okay, I do have that text somewhere. Right. I think this is what should be आपकी fine for स्क्रीन. you guys. नहीं, I'm sharing in the Teams chat. Just ओके. make sure कि you just create all the types of fields. Okay. So for now these will be dummy fields. जब हम कल custom object बनाएंगे, so for then it will become like actual use case पे हम बनाएंगे. We will go with, let's say, एक employee database बना के देखते हैं, right? तो उसमें हम बनाएंगे. So then we will go with this. But before that I want you guys कि आप just एक field हर एक type का बनाइए, because there are few steps which are different. So I want you to go through all those. Now within these, जो डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को स्किप करने के लिए बोला था, राइट? व्हाट आर द वंस? रिलेशनशिप्स, लुकअप्स, रोल अप समरी, राइट? उनको एक्सक्लूड करके बाकी आप सारे टाइप का फील्ड्स आप यहाँ से देख के बनाएंगे. यू जस्ट नीड डमी नेम्स फॉर नाउ. जस्ट गो थ्रू दो स्क्रीन्स. कुछ रिमेंबर, कुछ फील्ड में देयर विल बी 2-3 टाइप्स, कुछ फील्ड में देयर विल बी मल्टीपल टाइप्स. फॉर फॉर्मूला आई वुड सजेस्ट आप एक फॉर्मूला फील्ड बनाएं which would be for what? Okay, formula के लिए I'll give you a actual example. हर account पे there is a created date का एक field है, right? So आपका formula field should be true if the year is leap year. कि मतलब leap year में create हुआ है कि नहीं, else false. Now this is the एक मैंने आपको जस्ट बेसिक एक्सरसाइज में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं. एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस. ओके, अबाउट द सॉल्यूशन फॉर दिस आई जस्ट वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट. ओके, आप सब प्लीज ये अटेम्प्ट कीजिएगा. आई विल बी शेयरिंग द सॉल्यूशन टुमारो, बट बिफोर आई क्वेश्चन ऑल ऑफ यू अबाउट व्हाट अप्रोचेस यू टुक. एम आई क्लियर? राइट सर. राइट. So this will actually be just a simple exercise. आप just dummy field सारे बना के देखिए अकाउंट पे कि अच्छा ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं. जब आप ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या क्या इनपुट आपसे लेता है, राइट? अगर आप नंबर सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या इनपुट लेता है. यू जस्ट गो थ्रू दैट वॉक.
Okay, then I'll be sharing the actual detail. ये जो मैंने just dummy field लिया है, every step of this I'll share, but I want you guys to do it first. If you're able to do it, then that is far better than me just sharing the solution. Is that clear? मतलब सर आपने ये जो हमें इसमें दिया चैट बॉक्स में, ये सारे के सारे आपने डेटा टाइप के हिसाब से नीचे नेम और लेबल तो चलो एपीआई नेम है तो Yes, I have just provided you the name or label. राइट, बस वो बनाने हैं बस। राइट, आप वो फील्ड को क्रिएट कीजिए। अब आप जाके देखेंगे वहां पे ईमेल के फील्ड में नेक्स्ट पे क्लिक करने पे कुछ अलग चीजें पूछता है वो, जो ऑटो नंबर में नहीं पूछ रहा था। ओके, नंबर में इट विल आस्क फॉर अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स, टेक्स्ट में इट विल आस्क फॉर अ डिफरेंट थिंग्स। सो आई वांट यू टू गो थ्रू दोस 2-3 स्क्रीन्स की क्या क्या डिफरेंसेस है उसके अंदर। ओके ओके, कि अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या पूछता है। यू शुड जस्ट गेट सम एक्सपीरियंस कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। देन वी विल बी क्रिएटिंग एन एक्चुअल यूज केस। जब हम लेट्स से जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब एम्प्लॉय का रिलेवेंट फील्ड्स बनाएंगे, तब उसमें आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे। दैट इज व्हेन यू विल गेट द एक्चुअल हैंड्स ऑन ऑफ रियल सिनेरियो में कैसे डेटा पॉपुलेट करना। ओके ओके फाइन, sounds good then. Just go through these things. I'll also share you the link for a help, जैसे गाइड के लिए जो रहता है, राइट, which is for hold on, this is what this is for the code. I don't want this. I want the right. So this is a link where you will find some of the more detailed information about the field, right? So you will see यहाँ पे कुछ आपको fields है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा in your org, okay, because those are specific field types which are only applicable in few of the specific orgs and scenarios, और या फिर latest जो releases है उसके अंदर आपको ये मिलेगा। But the ones which you will see available in your org, वो सारा fields का data आपको documentation यहाँ पे आपको मिल जाए। Okay, go through this documentation, it will help you. There are a few API level fields जो यहाँ पे हैं which I don't want you guys to go through, but it is better if you at least have the data. I do have one of the blogs also which I have, I'm not sure. I'll go through the link for that and I'll share that too. Okay, but for now आप ये डॉक्यूमेंट में से जाइए, आप इसको पढ़िए, जो हमारा रिकॉर्डिंग होगा आज के सेशन का उसको गो थ्रू कीजिए, गो थ्रू व्हाटएवर स्टेप्स आई फॉलोड, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, खुद से आप फील्ड्स बना के देखिए, एंड देन tomorrow when we reconnect, first I will be asking how you guys have approached this problem, how you guys have tried to solve this, and then we'll go through what is the best way to solve this before we move forward to tomorrow's class. Okay? Okay. Okay, sir.